नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज बीदर के मंगलपेट हफ्सी कोर्ट में आज मानवाधिकार आयोग की ओर से एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आज औरा तालुक के संतपुरा गांव के सुभाष चंद्र बोस हाई स्कूल में पुराने छात्र समन्वय समिति द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अमेरिकी विमान निर्माण कंपनी बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का किया उद्घाटन। बीजेपी के हिंदुत्व और राम राज्य पर शिवसेना कांग्रेस हमलावर, पूर्व सीएम उद्धव व अधीर रंजन ने संभाला मोर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भारत के लिए अमृतकाल से ज्यादा जरूरत शिक्षा काल की। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर के मंगलपेट हफ्सी कोर्ट के अतिथि गृह संभागान में आज शुक्रवार 19 जनवरी को सुबह में मानवाधिकार आयोग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीदर एसपी चन्नबसवन्ना के अलावा अधिवक्ता और जजेस ने भाग लिया और लोगों की समस्याएं सुनी। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ಎಲಿನೇಬಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು. ಸೊ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ. ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಮೆಂಡಬಲ್ ಸ್ಟೇಪ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಸ್ ನಾರ್ದಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮುಖ್ಯ ಅದು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನೋ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರವಾಗಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಕೆಲವು ದೂರುಗಳು ಹೊರತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು. ಅದು ಹೊರತಾಗಿ 55 ಪ್ರಕರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಟೇಕನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದಿಂದ ತಮ್ಮಿಂದ ಏನು ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯ ಆ ನಂತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಆಗಬೇಕು. ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಸಾಕು, ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ತಾವು ಬಂದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ನಾವು ಸೋಮೋಟೋ ಕಾಗ್ನಿಜೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಕ್ಕು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ.
आज औराद तालुक के संतपुरा गांव के सुभाष चंद्र बोस हाई स्कूल में पुराने छात्र समन्वय समिति द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस संगठन के तहत संचालित सुभाष चंद्र बोस हाई स्कूल ने हजारों छात्रों के जीवन में सुधार किया है और लगभग 40 सालों तक हजारों छात्रों के जीवन को आकार देने का श्रेय KT9 कर्नाटक पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है। इस विद्यालय से पढ़े बच्चे आज देश विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों पर आसीन हैं। इस विद्यालय में पढ़कर अपना जीवन बनाने वाले छात्र छात्राएं पुनः उसी विद्यालय में लौटे जहां उन्होंने अध्ययन किया था। इसी उद्देश्य से सभी पुराने छात्रों ने 24 फरवरी 2024 को एकत्रित होकर एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसका नाम है गुरु वंदना कार्यक्रम एवं पुराने छात्र मैत्री सम्मेलन। इस सम्मेलन के एजेंडे और तारीख की घोषणा करने के मकसद से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्कूल के पूर्व हेडमास्टर मल्लिकार्जुन हिप्पलगावे, वर्तमान हेडमास्टर मनोहर बिरादरा, शारीरिक शिक्षा शिक्षक नंददीप बोराले, गुरुनाथ देशमुख, पूर्व हेडमास्टर शिवराज जुलांडे और पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष संतोष पाटिल, नागेश स्वामी उपस्थित थे। इस अवसर पर औराद से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा का सम्मान किया गया। औराद से अलीम पाशा की रिपोर्ट। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಂತಪುರ। ನಾನು ಕೂಡ ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈ ಕರೆದಿರೋ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನದಂತಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 24ನೇ ತಾರೀಕರಂದು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಲೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು 40-45 ವರ್ಷ ಆಯಿತು। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕಲಿತ ಶಾಲೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿದ್ದೆವು। ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಂದಾದೀಪ್ ಬೋರಳೆ, ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೆನೆಸುವಂತಹ, ತಿರುಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ, ತುಂಬ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಯಾಕಂತಂದರೆ 1984-85ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ। ಈ 40 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿದೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ವಿನೂತನವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಎಂದೂ ಮಾಡಲಾರದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ। ಈ ಆಸೆಯನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ನೆರವೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು KP ನ್ಯೂಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿನಾಂಕ 24 ತಾರೀಕಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ KP ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ। ನಮಸ್ಕಾರ। ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು। ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸಮಯ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ। ಮೊನ್ನೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 16/1/2024ರಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು। ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು। ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಉತ್ಸುಕತೆ ಇದೆ। ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ತಾವೇನೋ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಕರಿಬೇಕು, ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದ್ವಿ। ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೇಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೇನಾದ್ರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ। ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಿಪ್ಪಳಗಾವಿ, ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು, ಸಂತಪುರ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸಂತಪುರ। ನಾನು ಗುರುನಾಥ್ ಎಂ ದೇಶಮುಖ್, ಈ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ, ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು।
ಆ ಕನಸನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಬರುವ ಫೆಬ್ರವರಿ 24/2/2024 ಅದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಈ KP ನ್ಯೂಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. बीदर एसपी कार्यालय में कार्यरत डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच में हेड कांस्टेबल गुंडप्पा रेड्डी को आज बीदर एसपी चन्नबसवन्ना द्वारा गुंडप्पा रेड्डी को एएसआई डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच के एएसआई बनाए जाने पर स्टाफ की ओर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर गुंडप्पा रेड्डी ने एसपी चन्नबसवन्ना आईपीएस का धन्यवाद दिया। केपी न्यूज के लिए संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। कर्नाटक के 50वें उत्सव के तहत आज हुमनाबाद पहुंचे ज्योतिरथ का यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत कस्बे के श्री वीरभद्रेश्वर मंदिर के सामने मां भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना कर की गई। मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। 50 साल हो गए इस बात को। इस प्रकार इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हेसा रायतू कर्नाटक उसिरागल्ली कन्नड़ नाम से पूरे 1 साल तक कर्नाटक इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति और भाषा के संबंध में युवाओं के बीच कन्नड़ कर्नाटक के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस यात्रा में एमएलसी डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल माता भुवनेश्वरी की पूजा करके इसको आगे बढ़ाया। टाउन के मुख्य रास्ते से होकर ये यात्रा शिक्षक भवन पहुंची। इस अवसर पर तालुक के सभी अधिकारी एवं शिक्षक सहित विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी हाजिर थे। हुमनाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहिउद्दीन लाठोड़ी की रिपोर्ट। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अमेरिकी विमान निर्माण कंपनी बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया, राज्यपाल थावरचंद गहलोत और बोइंग के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। बोइंग का ये कैंपस 43 एकड़ में फैला है और इसे बनाने में 1600 करोड़ रुपए की लागत आई है। बोइंग का ये सेंटर अमेरिका की बाहर कंपनी का सबसे बड़ा निवेश है। बेंगलुरु के बाहरी इलाके देवनहल्ली में स्थित यह हाईटेक डिफेंस और एरोस्पेस पार्क कैंपस है। इस सेंटर से वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा उद्योग के लिए अगली पीढ़ी के आधुनिक उत्पाद और सेवाएं विकसित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की भी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र में पूरे भारत से ज्यादा लड़कियों को बढ़ावा देना है। ये कार्यक्रम लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित STEM क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल सीखने और विमानन क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा। कार्यक्रम के तहत युवतियों को STEM क्षेत्र से जुड़े करियर में रुचि जगाने में मदद मिलेगी। इसके तहत 150 जगहों पर लैब बनाई जाएगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला है। धर्म और राजनीति पर जारी बयानबाजी के बीच ताजा घटनाक्रम में उद्धव ठाकरे ने बिना किसी नेता और दल का नाम लिए कहा कि जिन लोगों को बाला साहेब ठाकरे ने बचाया वही लोग अब शिवसेना को खत्म करने पर आमादा हैं। उद्धव ने कहा कि शिवसेना को नष्ट करने की ताक में लगे लोग हिंदुओं के बीच खाई पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जनता को आगाह करते हुए कहा कि ऐसे नेताओं से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। बकौल उद्धव ठाकरे, शिवसेना का नारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन नालायक लोग हिंदुओं के बीच भेदभाव कर रहे हैं। इससे पहले भी उद्धव भाजपा पर हमलावर रहे हैं। धार्मिक मामलों की बात करें तो पूर्व सीएम उद्धव ने हाल ही में अयोध्या जाने के सवाल पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि वे 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या न जाकर महाराष्ट्र के नासिक जिले में कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही गोदावरी नदी के तट पर आरती भी की जाएगी। बकौल उद्धव उन्हें मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर भाजपा राजनीति कर रही है।
जनपद मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने सिविल लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र एसएसपी कार्यालय में दर्ज कराया है। दर्ज शिकायती पत्र में युवती का आरोप है कि गांव के ही रहने वाले एक युवक आसिम ने 2 साल तक उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब युवती ने इस बात की शिकायत थाने पर की तो मुकदमे से बचने के लिए आरोप है कि आसिम ने 3 माह पूर्व उससे शादी कर ली। युवती का कहना है कि जब युवती गर्भवती हुई तो उसके पति ने उसके पेट में लात मार दी, जिससे उसका गर्भपात हो गया। इसके साथ ही ससुराल पक्ष के सास ससुर ननद ने एक राय होकर उसके पिता से 5 लाख रुपए की मांग की। न देने पर उसके साथ मारपीट की और पति आसिम ने 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। इस संबंध में युवती ने थाने पर शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वो अपने पिता के साथ एएसएसपी कार्यालय पहुंची और आरोपी पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगी। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम पारसी की रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में शिक्षा की स्थिति को लेकर शुक्रवार को मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत 2024 में अपने छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, भारत को अमृतकाल से ज्यादा शिक्षा काल की जरूरत है। खड़गे ने वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2024 में भारत अपने छात्रों के लिए मोदी सरकार से न्याय सुनिश्चित करेगा, क्योंकि शिक्षा पर उसका रिपोर्ट कार्ड घोर विफलता के साथ चिन्हित है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत में 14 से 18 साल के 56.7% छात्र तीसरी कक्षा का गणित हल नहीं कर सकते। इस आयु वर्ग के 26.5% छात्र अभी भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में दूसरी कक्षा के स्तर का पाठ धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटें। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आज यानी कि 19 जनवरी से आगामी 26 जनवरी तक सुबह के 10:20 से लेकर दोपहर के 12:45 तक दिल्ली एयरपोर्ट पर ना तो कोई फ्लाइट लैंड करेगी और ना ही यहां से किसी फ्लाइट का टेक ऑफ होगा। दरअसल ये आदेश केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। बता दें कि देश अगले सप्ताह 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस बार गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि होंगे। ये 6ठी बार होगा जब कोई फ्रांसीसी नेता गणतंत्र दिवस परेड में सम्मानित अतिथि होंगे। पहली बार सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की सभी महिला मार्चिंग और ब्रास बैंड टुकड़ियां इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर भाग लेंगी। एक सहायक कमांडेंट रैंक की महिला अधिकारी और 2 अधीनस्थ अधिकारी 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए कुल 144 महिला बीएसएफ कांस्टेबल्स का नेतृत्व करेंगे। बिहार के आरा के रहने वाले एक युवा इंजीनियर ने पानी के ऊपर तैरता हुआ अनोखा घर बनाकर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल पेश कर दी है। ये घर जलवायु परिवर्तन के हिसाब से बनाया गया है। ये फ्लोटिंग हाउस आरा मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर महुली गंगा नदी के ऊपर निर्मल धारा में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। इस घर को इंजीनियर प्रशांत कुमार और उनकी टीम ने बनाया है। इसका मकसद इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इंजीनियर प्रशांत कुमार की माने तो तकरीबन 6 लाख की लागत से इस घर का निर्माण किया गया है, जिसमें गाय की गोबर से बने ईंट, फूस, मिट्टी, चूना और बांस के बल्ले जैसे कई प्राकृतिक सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि घर के अंदर का फ्रेम लोहे से बनाया गया है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज बीदर के मंगलपेट हफ्सी कोर्ट में आज मानवाधिकार आयोग की ओर से एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आज औरा तालुक के सनपुरा गांव के सुभाष चंद्र बोस हाई स्कूल में पुराने छात्र समन्वय समिति द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अमेरिकी विमान निर्माण कंपनी बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का किया उद्घाटन। बीजेपी के हिंदुत्व और राम राज्य पर शिवसेना कांग्रेस हमलावर, पूर्व सीएम उद्धव व अधीर रंजन ने संभाला मोर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भारत के लिए अमृतकाल से ज्यादा जरूरत शिक्षा काल की।
केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।